with humans? I have gone live there. 1 second. Okay, it's processing. It's going. Yeah, it's not live. So we are live on Women's for Humanities page, I think. Can't see it here. Hi, Rashmika. Are we live? Yes, we were live. Can you Yes, check? yes, 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 It's yes, live, right? yes, yes. So, hello everyone. Namaste. And hi, I'm Jalpa Vitlani, and I'm the State Director of Humans for Humanity for Maharashtra. Rashmika, I can't see all your screens. You guys are not visible. Can you view all of us? Yes. Actually, people will have to. Just this, Um, just the video. I cannot see the video of everyone. I can only I'll see have to Sarthak. ask everybody to manually start their videos. आप Yes. लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए जैसे बाकी पार्टिसिपेंट्स ने किया है. आप भी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज. Manirul, आप भी कर लीजिए. Rashmika, your video is also not on. I was actually receiving that. Yeah. Manirul, आप भी चालू कर लीजिए. जी. Namaste. Hi, I'm Jalpa Vitlani, and I'm the State Director of Humans for Humanity for Maharashtra. It's a pleasure to have all of you with us here today. I'd especially like to welcome Rashmika Das and all the community workers of Rehab India for joining us and collaborating with us on this cloth pad making workshop today. And I'd also like to welcome Artika from Tarini, who will be conducting the workshop for us today. Artika has actually been a volunteer with Humans for Humanity for the last 2 years, and now she's running her own trust called Tarini. So a big warm welcome to all of you. And I'd like to share that, we've been running this WASH project for Humans for Humanity for the last 5 years all over India. And it's been an incredible journey. I'd also like to touch upon that this NGO, Humans for Humanity, has been founded by Anurag Chauhan. And at the young age of 16 years, as he started following his passion for social work, and we're doing involved in very different areas like, Swachh Bharat, education, even promotion of Indian culture. But one project which we're very passionate about all over India is WASH, which is women's sanitation and hygiene. And we've taken this work to different parts of the country. And initially in the workshops, we always go out, talk about the biological reasons for menstruation, loving yourself, looking after yourself, even about the taboos. And in every workshop, we distribute a lot of free pads. And initially we were giving the regular pads, and then we started producing eco-friendly kits. Now there are two advantages. It's actually also, like I said, since it's eco-friendly, there's no a waste from the pads. And even in the villages, as you know, sanitation is not a regular exercise. Sometimes they're not coming to pick up the waste in time. And also the second advantage is there's a lot of comfort, and the women can use these kits over 2.5 years, and it's providing employment to the women. So it's been a win-win situation. And even in the lockdown, a lot of women are earning their livelihood by producing these pads. And so it's been an incredible journey. And a lot of you, even viewers who are watching, might be soldiers to take this forward. It's a domino effect when we do work like this, and a lot of people get involved along the way.
So yes, with that, Tarini, I'd like to thank you for your contribution over the last 2 years, and I'm going to hand it over to you for the workshop. Okay, namaste first of all, and hello to everyone who's viewing us on Facebook. Thank you, Jalpa ji, for the very warm introduction. So first of all, before I straight away get into the workshop bit of it, this is a little bit for the viewers who are viewing us. Like ma'am said, Anurag's organization, that's Humans for Humanity, has been working in the area of sanitation and hygiene. It's been about 5 years actually that I've worked with him, and it's been the past 2 years that I'm doing my own thing. So yes, his organization works in women's health and hygiene, and they've covered a lot of women across the geography of India. What Tarini does is sort of a component of what Anurag's organization does. So we work exclusively in the area of menstrual health and hygiene, which is where a workshop like this comes into place. So very briefly explaining, sustainable menstruation is the type of menstruation where you control and where you limit the amount of waste you produce. That's all I'm going to go into right now. For the Facebook viewers, I just want to say that Rashmika has actually connected us with over 100 people. I don't think you can view all of them, we can see them, which is amazing. So she's connected us with about 100 people who are going to be learning and who are going to be making the sanitary pads as I teach them right now. And also that I'm going to switch to Hindi now because that's what I mean, it's for the benefit of the community that we're actually conducting this for. So I hope our other viewers on Facebook can follow that as well. Otherwise they can always get in touch with us later and we can always do this for them separately. I think it's also a visual demonstration, so it will be good anyway. Yeah, I'm sure I hope everyone can follow this through. Yeah. तो नमस्ते, जो लोग रश्मिका जी के ऑर्गेनाइजेशन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत नमस्ते. मैं आपको आज एक क्लॉथ पैड बनाने की टेक्निक सिखाने वाली हूँ. तो जैसे कि जो Can we unmute some of them so that if they have any questions, or as we move along we know that they are in the pulse with as you like. Sure, then I'll unmute them all. Yes. Even Sahil's screen and Ash. You can unmute wherever you feel like disturbance will be lowest. We can always take questions at the end. Yeah. I'm unmuted them, so now if anybody is like manually muting themselves, so they can unmute later. Okay. जैसे कि पहले बोला गया है कि आज भी इंडिया में, भारत में कई गांव में ऐसी स्थिति है कि जो औरतें होती हैं वो माहवारी के समय पे भी, महीने के समय पे भी पैड्स नहीं खरीद पाती हैं. कहीं जगह में पैसे की प्रॉब्लम होती है, कहीं पे ऐसे होता है कि पैड्स अवेलेबल ही नहीं होते हैं आसपास की किसी दुकान में. इसलिए मैंने भी कई सारी कम्युनिटीज के साथ काम किया है जहाँ पे इस समय पे पैड्स के अलावा लोग कई सारी चीजें यूज करते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती हैं. तो हो सकता है उस समय पे वो थोड़े बहुत पैसे बचा लेते हों, हो सकता है उस समय पे वो काम चलाते हों, पर अगर बाकी उनके पूरे जीवन को देखा जाए तो वो उनके लिए अच्छी नहीं होती हैं. तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्लॉथ पैड्स का आविष्कार किया गया, जो मार्केट में मिलने वाले पैड्स होते हैं उनके जैसे दिखते हैं, उनके जैसा काम करते हैं, पर वो कॉस्ट में, उनका जो प्राइस होता है, उनकी जो कीमत होती है, उसमें वो उनसे बहुत ज्यादा सस्ते पड़ते हैं. हाँ, ये बात जरूर है कि जो मार्केट के पैड्स होते हैं वो ज्यादा देर तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं और जो कपड़े के होते हैं वो थोड़े कम देर तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं. पर अगर स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाए तो एक्चुअली मार्केट के पैड से बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं जो घर पे बने हुए कपड़े के पैड्स होते हैं. अब मैं इसको बनाना इतना आसान है, पर मैं आपको धीरे धीरे करके एक स्टेप बताऊंगी. तो पहली बात तो कई सारी औरतें शायद जो हमें देख भी रही होंगी वो घर में कपड़े का इस्तेमाल करती होंगी. महीने के समय पे, माहवारी के समय पे खून सोखने के लिए कपड़े का इस्तेमाल करती होंगी. तो अब उन्हें लगेगा कि पैड्स भी तो कपड़े से ही बनाने हैं, तो इसमें अंतर क्या हुआ. तो अंतर ये हुआ कि पहली बात तो हर किस्म का कपड़ा इस चीज के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है. जितना हो सके उतना सूती कपड़ा, दैट इज कॉटन, जितना हो सके उतना कॉटन इस्तेमाल किया जा सकता है.
दूसरी चीज ये होती है कि कई बार गांव में ऐसा होता है या कई घरों में भी ऐसा होता है कि किसी के पास कोई पुरानी साड़ी होती है या पुराना कुर्ता होता है, उसी को फाड़ के उसी का एक बार इस्तेमाल कर लिया जाता है और उस एक बार के बाद उसे फेंक दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जिस तरह से आप मार्केट के पैड फेंकते हैं, उस तरह से आप कपड़ा भी फेंक के उतनी ही गंदगी इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे मतलब कोई प्रॉब्लम में कुछ भी मतलब बेहतर नहीं होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पहली बात कि कॉटन का कपड़ा या सूती कपड़ा लेना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई भी सूती कपड़े की साड़ी हो या सूती कपड़े का कुर्ता हो तो वो इस्तेमाल करना है, ना ही कि कोई भी कपड़ा। तो अगर आपके पास एक भी कॉटन की साड़ी है, उस एक कॉटन की साड़ी से, उस 6 मीटर के कपड़े से लगभग 20 पैड्स बन सकते हैं। तो सिर्फ एक साड़ी से काफी सारी औरतों का काम बन सकता है। तो पहली बात, ऐसा कोई सूती कपड़ा लेना है। अब इसके बाद हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये कपड़ा साफ है कि नहीं? तो इसका एक बहुत सिंपल मेथड है कि ये कपड़े को जिस तरह से बाकी कपड़ा धोते हैं, हम अपनी बाकी सारे कपड़े धोते हैं, सूट धोते हैं, कुर्ते धोते हैं, उसी तरह से पानी और डिटर्जेंट में धोना है, अच्छे से धोना है और उसके बाद धूप में सूखने के लिए रख देना है। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है, बस जैसे सब कपड़े धोते हैं उस तरह से धो के धूप में सुखाना है। बस इतना करना है कि जैसे हम बाकी जो आम कपड़े होते हैं एक बार धो के सुखा के पहन लेते हैं, इसको 2 से 3 बार धोना है, 2 से 3 बार धूप में सुखाना है। 2 से 3 बार धोने और सुखाने के बाद ये इस्तेमाल करने के लिए एकदम रेडी हो जाएगा। अब जब ये कपड़ा हमारे पास आ गया है तो हमें 2-3 चीजों की जरूरत होगी। एक तो एक मार्कर या एक पेन की जरूरत होगी और उसके साथ हमें जरूरत होगी कैंची की या किसी भी काटने की चीज। और उसके साथ हमें चाहिए होगा सुई धागा, या जिन लोगों के पास मशीन है घर पे वो मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर आपके पास मशीन नहीं है तो कोई भी डरने की बात नहीं है, बिना मशीन के हाथ से सिल के भी बिल्कुल वैसे ही बन जाता है जो आराम से इस्तेमाल किया जा सके। जैसे अब मैंने यहाँ पे आपके सामने कपड़ा ले लिया है, तो आपने मार्केट के पैड देखे होंगे तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि उनका आकार किस तरह का होता है, वो किस तरह के शेप किस तरह का होता है, आकार किस तरह का होता है। तो आपको जैसा भी पता है, जैसा भी याद है, उस तरह का आप उसे इस कपड़े पे किसी भी पेन, मार्कर, पेंसिल, किसी भी चीज से ड्रॉ कर लीजिए। मैं यहाँ पे एक रफ आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। तो रफली इस तरह का दिखता है। ऐसे में कपड़े का ये पैड यूज करने से एक और फायदा ये होता है कि क्योंकि आप ये पैड खुद अपने हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं, आप खुद अपने हिसाब से बना रहे हैं, आप इसका साइज भी अपने हिसाब से बना सकते हैं कि आपको इससे बड़ा चाहिए या किसी को इससे छोटा चाहिए। तो उस हिसाब से आप इसको इस पे ड्रॉ कर लीजिए, कपड़े पे ड्रॉ कर लीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि आपको एक साड़ी के लगभग 20 बन जाएंगे। ये सही है कि 20 बन जाएंगे, पर हमें इस तरह के कपड़े के एक पैड बनाने के लिए इस तरह के कपड़े के 7 से 8 परतें चाहिए होंगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप इसे एक बार ड्रॉ कर लीजिए। और जैसे मैंने पीछे फोल्ड किया हुआ है, मैंने अपना पुराना कॉटन का कुर्ता लिया हुआ है और मैंने इसे पीछे फोल्ड किया हुआ है। तो अब जब मैं इसे काटूंगी तो इसके बहुत सारे परतें आएंगी। तो हमें इसी तरह 7 परतें चाहिए, लगभग 7 परतें चाहिए। अगर आपके पास 6 परतें हो तो भी ठीक है, 5 से 6 परतें हो तो भी ठीक है, पर आप जितना मोटा बना पाएंगे उतना ज्यादा मजबूती से ये आपके काम आएगा। तो 6 परतें माना जाता है कि ठीक होती हैं एकदम, और इनसे कम ज्यादा भी चल जाएंगी। अब वो आपके अपने ऊपर निर्भर करता है कि आपको किस प्रकार का पैड बनाना है। ये तो कपड़ा जो मैंने बोला जैसे आप सबको घर में मिल जाता है ना, ये कपड़ा सबके पास घर पे होगा। Rashmika, I think Jalpa ma'am wants to be unmuted. Can you please unmute it? It's actually manual. Everybody is unmuted. I'll again. Yes, she's unmuted. Yes. Yeah. Think something, ma'am? Yeah, Artika is doing very well. What I was thinking is, you know, with the people who are watching us, let's just ask them if they are following you with a thumbs up. Yeah, So we know, because so many people are online. It'd be great if you could coordinate that. Yeah.
So maybe you can just ask them to put a thumbs up. You know, a lot of the community workers. अभी तक मैंने जो जो बताया है, अगर वो आप सबको ढंग से समझ आ गया है तो आप मुझे प्लीज ऐसे करके स्क्रीन पे दिखाइए ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। और अगर किसी को कोई परेशानी है तो हम यहाँ पे रुक के इस बारे में और भी बात कर सकते हैं, अभी तक जो बताया गया है उस बारे में। तो अगर अभी तक सबको ढंग से समझ आया है तो एक बार बस ऐसे करके दिखा दीजिए स्क्रीन पे ताकि मैं इधर से आगे बढ़ जाऊं। अब्दुल भाई, शमीम, समझ में आया तो ऐसे हाथ कर दीजिए ऊपर, हाँ, तो दीदी को मालूम पड़ेगा कि ठीक से समझ में आया है। I think it's seeming, yeah. Yes, yeah. ठीक है, तो जैसे कि मैं बोल रही थी, ये साड़ी का कपड़ा तो सबको घर पे मिल जाता है और ये पैड ठीक भी होएगा, काम भी करेगा, आप इस्तेमाल करेंगे तो एकदम सही भी रहेगा। पर अगर इस पैड को थोड़ा सा और बेहतर बनाना है तो इसमें एक और चीज लगा सकते हैं। ये लगाना जरूरी नहीं है, इसके बिना भी पैड एकदम ढंग से काम करेगा। पर एक और चीज है जो हमारे घर पे आसानी से कहीं कहीं मिल जाती है, अगर वो आपको आसानी से मिल रही हो तो उसको लगाने से ये पैड की क्षमता थोड़ी और बढ़ जाएगी। पर जैसे मैंने कहा, इसको बिना लगाए भी पैड की क्षमता उतनी ही रहेगी। वो चीज है जो आप देखते हैं, छाता आता है या रेनकोट आते हैं, मोबाइल वाला ये कपड़े की शीट होती है जो दोनों तरफ से वाटर प्रूफ मटेरियल से लैमिनेट हो रखी होती है। तो जैसे कि आप मेरा देख रहे हैं, ये भी मैंने नया नहीं खरीदा है, ये भी पुराना टेबल क्लॉथ है जिसको हमने काट के बनाया है। मतलब जो टेबल को कवर करने के लिए आते हैं कवर, वो ही है पुराना। किसी के घर में अगर पुराना छाता हो या पुराना रेनकोट हो या ऐसा भी इस मटेरियल का कुछ भी हो, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ भी यही रूल रहेगा कि इसको, क्योंकि ये प्लास्टिक है, ये अलग तरीके से होता है, ये जल्दी सूख जाता है, पर फिर भी इसको 2 से 3 बार धोना है और धूप में सुखाना है। भले ही ये पोंछने से भी सूख जाता है, फिर भी इसको धूप में सुखाना है। और जैसे कि उस कपड़े के साथ किया गया था, इस पे भी मार्कर से लेके जिस तरह का भी पैड आपको चाहिए वैसा बनाना है। अब एक तो ये पैड जैसे मैंने बना दिया, दूसरा आपने मार्केट में देखा होगा कि पैड्स में विंग्स बोलते हैं, एक चीज होती है, वो लगे होते हैं जिनसे वो ढंग से चिपक जाते हैं, ढंग से रख जाते हैं। अब इसमें चिपकने का तो कोई जगह है नहीं, तो इसलिए वो विंग्स, अब वो विंग्स 2 तरीके से हैं, या तो आप यहीं पे ड्रॉ कर दीजिए जैसे ये, तो आप ये पूरा विंग्स के समेत काट लीजिए। वरना अगर ये थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप सिंपल सा एक रेक्टेंगल का ऐसे काट सकते हैं जिसे आप बाद में पूरे पैड के साथ अटैच कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपके पैड बिल्कुल मार्केट के पैड जैसे दिखने चाहिए, काम आने चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। तो आपको जो आसानी से बने, जो आसानी से काम आए, वो ही करिएगा। चाहे आप ऐसे बनाए चाहे आप वैसे बनाए, ये काम उतने ही आएंगे। अभी तक जो समझाया गया है वो समझ में आ गया है। मैं आगे बढ़ूं, आप मेरे को प्लीज स्क्रीन पे ऐसे करके दिखा दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए। आप क्या कर सकते हैं, मार्केट से एक सैंपल पैड रख के वो हिसाब से उसका आप ड्राइंग कर सकते हो, तो बहुत आसान रहेगा। जी जी, जैसे मैम बोल रही हैं, जो मार्केट से खरीदे हुए पैड्स होते हैं, अगर आपको उनमें से किसी का साइज पसंद आता है तो आप सीधे उनको भी रख के उनका आकार ट्रेस कर सकते हैं। हाँ। और मतलब मैं वही बोल रही थी। और इसका दूसरा बेनिफिट यही है कि अगर आपको लगता है कि आपको मार्केट से आने वाला बड़ा या छोटा पैड चाहिए तो आप उसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ूं। जब आपके पास 6 से 7 परतें कट जाएं, कपड़े की 6 से 7 परतें कट जाएं इस शेप में, सारी एक से शेप में होनी चाहिए। और उसमें अगर आप बीच में एक लेयर इसकी लगा रहे हैं तो इसकी, तो यदि आप इसकी एक लेयर लगा रहे हैं तो आप कपड़े की 3 परतें लगाएं, उसके बाद इसकी एक लेयर लगाएं, जो मैंने आपको बताया था टेबल क्लॉथ या जो रेनकोट या जो भी मटेरियल होता है, ये अम्ब्रेला का जो टूटे हुए छाते का मटेरियल होता है, तो आप 3 कपड़े की लेयर के बीच में, 3 कपड़े की परतों के बीच में इसकी एक परत लगाएं और फिर से दोबारा 3 कपड़े की परतें लगाएं। बस इतना सा करना है आपको। किसी लोगों को लगता है कि इसको और मजबूत बनाने के लिए ये जो है हमारे पास प्लास्टिक का मटेरियल, इसकी एक परत अंत में भी लगा सकते हैं,
अब वो जैसे मैंने पहले बोला था, वो आपकी अपने मर्जी की बात है, वो आपको जो ज्यादा ठीक लगे, आपको जो यूज करने में सही लगे, ज्यादा मोटा भी ना लगे, वो करना है। तो हमने जो हमारे पास से बनाए हुए हैं उसमें हमने इसकी एक परत बीच में लगाई है और आगे पीछे हमने सूती कपड़े की परत लगाई है, और इसको आपको बस पूरे कोने 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 से सिल देना है। अब चाहे आप इसे मशीन से सिले या हाथ से सिले, एक ही बात है। ये जाहिर सी बात है कि जो भी मशीन से सिला होता है उसमें सिलाई थोड़ी बारीकी से हो गई होती है, और जो हाथ से सिला होता है वो हो सकता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए साइड से, पर उससे इसके इस्तेमाल करने में कोई फर्क नहीं आता है। तो मैंने 2 बनाए हुए हैं, मैं वो आपको दिखा देती हूँ कि वो परते सिलने के बाद कैसे लगेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा आपको ये विंग्स के बारे में भी बता दूंगी। तो ये देखिए, मैंने ये 2 बनाए हुए हैं, ये बिल्कुल वैसे ही लगते हैं, इनका शेप बिल्कुल वैसे ही है जैसे मार्केट के होते हैं, पर मैंने ये थोड़े लंबे बनाए हुए हैं। और ये पीछे से ऐसा बहुत सुंदर सा दिखता है क्योंकि मैंने अपने पुराने कुर्ते के कपड़े से बनाया है, तो आप पीछे कुछ भी लगा सकते हैं। आगे हम ज्यादातर सफेद लगाते हैं ताकि साफ करने में हमें आसानी रहे और हमें पता चले कि ढंग से साफ हो गया है इस्तेमाल करने के बाद भी। पीछे आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने बोला पीछे आप ये प्लास्टिक की लेयर भी और लगा ये सकते लंबी हैं। पट्टी शायद आसान है, बहुत मार्केट की विंग जी से जी भी जी। अच्छा है। हाँ, तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि या तो आप विंग साथ में बना सकते हैं या फिर आप अलग से काट के ऊपर से सिलाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये किया है, मैं ये वाले मेरे मशीन से सिले हुए हैं, हाथ से नहीं सिले हुए हैं, पर हाथ से सिलने पे भी ऐसे ही दिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये किया हुआ है कि मैंने ये लंबी पट्टी बनाई है दोनों तरफ, लगभग इतनी लंबी। और इस लंबी पट्टी में यहाँ पे बटन है, ऐसे बटन है जो टिच बटन होते हैं। मेरे पास अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं है उसके, पर जो बटन्स होते हैं तो उन दोनों बटन्स को यहाँ पे लगाने से ये हुआ है कि ये ऐसे करके ऐसे सील हो जाता है। तो इसमें चिपकने का कोई जगह नहीं है, पर क्योंकि ये बटन ऐसे लगे हुए हैं, ये बटन्स के लगने की वजह से अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो इसका जो यूज होता है वो बिल्कुल देखिए, जैसे ये सील हो गया है बटन की वजह से, तो इसका अब यूज जो होता है वो बिल्कुल जो बाजार के खरीदे गए पैड्स की तरह होता है, वैसे ही होता है। यहाँ पे चिपकने का कुछ नहीं है। उसे तो दूसरा शायद मैंने अच्छा जिसमें है, उसे हाँ शायद और अच्छा है क्योंकि सिक्योर है, एकदम हिलेगा जी ही नहीं। तो कोई भी काम करने में दिक्कत नहीं आएगी, घूमने फिरने में भी किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। जी। यस। और दूसरी बात मैंने ये भी देखा है कि जैसे मैं आपसे बोल रही थी कि किसी किसी को हो सकता है इससे बड़े पैड की जरूरत हो या इससे छोटे पैड की जरूरत हो। तो जब आप ये खुद ही लगा रहे हैं सिल के, तो अगर आपको लगता है कि और सपोर्ट की जरूरत है, आपको लगता है और ढंग से एक जगह पे रखने की जरूरत है, तो आप इसी तरह की पट्टियां और काट के यहाँ पे और यहाँ पे भी लगा सकते हैं। क्योंकि आप खुद अपने हिसाब से सिल रहे हैं, तो आप इसे खुद अपने जैसा आपको सही लगे, आप वहाँ पे 2 पट्टियां भी लगा सकते हैं, 3 पट्टियां भी लगा सकते हैं। आपको यूज करके जो सबसे बेहतर लगे, जो डिजाइन आपको सबसे बेहतर लगे, उस हिसाब से आप इसे बना सकते हैं। तारिणी, बस इतना। मिनिमम लेंथ हम लोग क्या रेकमेंड कर रहे हैं सबको? 6 इंच से तो छोटा नहीं होना चाहिए, राइट? नहीं, 6 इंच भी नहीं, इनफैक्ट 8 इंच होनी चाहिए मिनिमम लेंथ, एग्जैक्टली, जो हाँ। सबसे छोटा होता है। जैसे कि ये है जो ये 9 इंच का है, जी। तो 8 इंच लगभग इतना बड़ा होगा। तो क्योंकि अगर कोई काम में व्यस्त है तो फिर एटलीस्ट कपड़े या कुछ स्टेन नहीं होगा, जी और इसमें फ्लो भी इजीली कलेक्ट हो सकता जी है। जी जी। क्योंकि काफी समय हमने जब औरतों से बात करी है, गांव-गांव में जाकर बात करी है, तो ऐसा मालूम पड़ा है कि वो जो लोग जैसे स्टोर से खरीदते भी हैं नैपकिन्स, वो भी क्योंकि जो नैपकिन्स जैसे-जैसे स्टोर वाले नैपकिन्स बड़े होते जाते हैं, उनका उतना सब ही लोग। कॉस्ट भी बढ़ता जाता है, उनका दाम भी बढ़ता जाता है। जी तो हमें कई बार लोगों ने बताया है कि वो इस वजह से ही छोटे नैपकिन खरीदते हैं, क्योंकि जो बड़े नैपकिन होती है उनका दाम बहुत ज्यादा होता है। जी जी। तो जब आप खुद से ही घर पे बना रहे हैं और कपड़े से बना रहे हैं, तब आपको ये परेशानी नहीं आएगी। तो आप अपने हिसाब से अपने साइज का बना सकते हैं। तो बनाना इतना ही आसान होता है, मतलब मैंने आपको जितना 5 मिनट में बताया है, 6 मिनट में बताया है, उतना ये 1 से 2 घंटे में पूरा बन के रेडी हो जाता है। और इसको अब एक बात है कि इसको आपने इतनी मेहनत करके बनाया है और ये अच्छा भी दिख रहा है, तो इसको फेंकना नहीं है।
जैसे कि आजकल आप लोग कोरोना वायरस में मास्क पहन रहे होंगे कपड़े के, और आप उन मास्क को भी धो के दोबारा पहन लेते हैं, उसी हिसाब से इनको भी धोया जा सकता है। और ये बात शायद जगह जगह में बताई नहीं जाती है, और लोग इसीलिए कपड़े का इस्तेमाल करके उस कपड़े को फेंक देते हैं, जिससे भी गंदगी बढ़ती है। जैसे कि प्लास्टिक की गंदगी बढ़ती है, उसी तरह से ये इस्तेमाल किए गए कपड़े की गंदगी बढ़ेगी। कहीं कहीं पे मैंने सुना है कि वहाँ पे जो माहवारी के समय पे कपड़ा इस्तेमाल होता है उसको जला देते हैं, उससे भी कोई अच्छी चीज नहीं होती है। जलाने से आप और ज्यादा ही प्रदूषण कर रहे हैं, और हवा भी खराब हो रही है। आप लोगों के घर के आसपास ही आप अपना फेंकते हैं, तो वो आपके आपके आसपास ही सफाई को ध्यान में रखते हुए इसको भी धोया जा सकता है। आप इसको जैसे मास्क पहन रहे हैं आप जो कोरोना वायरस के समय पे कपड़े का मास्क, आप उसे इसको उसी की तरह समझ के ये समझ लीजिए कि इसको भी धोया जा सकता है। और किसी को इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। वैसे हम, ये भगवान की देन है, हमें जो पीरियड्स होते हैं महामारी के टाइम, ये भगवान की देन है। तो जैसे दीदी ने समझाया है, इसको धो के सुखा के हमें धूप में रखना है, तो फिर एकदम फिर से हमें यूज करने के लिए सुरक्षित हो जाते हैं। क्योंकि धूप में रखने से कोई भी कीटाणु मर जाते हैं। और हमें समझना है कि हमें अपने आप को संभालना है, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। क्योंकि काफी लोग शर्माते हैं इसको सुखाने के लिए, लेकिन हमें कोई भी कोना ढूंढना है जहाँ पे हम उसे अच्छी तरह बाहर रख सकते हैं धूप में। देखिए मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ, ये इतना सा हो जाता है, तो आप इसको आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। अगर आपके घर में बाथरूम नहीं है, अगर आप लोग कहीं दूर जाते हैं अपना बाथरूम इस्तेमाल करने, तो भी इसे आराम से ऐसे फोल्ड करके किसी भी अखबार में लपेट के, किसी भी पैकेट में लपेट के ले जा सकते हैं। जहां तक कि इसको धोने की बात आती है, तो 2-3 चीजें हैं जिनसे आसानी से ये धुल जाता है। तो पहली बात तो आप इसे अगर कुछ घंटे तक गर्म पानी में रख दीजिए, तो ये अपने आप ही धुल जाएगा, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। गर्म पानी में थोड़ा सा साबुन मिला के, थोड़ा सा डिटर्जेंट मिला के, जो भी कपड़ा धोने का आप साबुन इस्तेमाल करते हैं, उसमें थोड़ी देर बस सोख करके रख दीजिए। आप उसे थोड़ी देर उसमें डुबा के रख दीजिए, तो अपने आप ये कुछ हद तक साफ हो जाता है। लगभग 70% उससे ही दाग निकल आते हैं, सिर्फ गर्म पानी में डाल के रखने से। और अगर आप इसको थोड़ा और साफ करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से नींबू जो होता है, वो आसानी से कहीं भी जहाँ पे सब्जी मिलती है वहां पे मिल जाता है। तो नींबू जो होता है उसमें एसिडिक होता है, अम्लीय तत्व होते हैं उसमें, जो जो खून होता है, जो इंसानों का खून होता है, उसको काट देते हैं। तो अगर आप उसी गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू भी डाल दीजिए, तो आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी, ये अपने आप से ही साफ होके बाहर निकलेगा। आपको सिर्फ पानी से साफ करना पड़ेगा एक बार। और जैसा कि मैम ने बोला है, आप हर चीज को, ये सिर्फ कपड़ों के बने पैड की नहीं बात हो रही है, आप जो आम जिंदगी में कपड़े भी पहनते हैं, उनको भी धूप में सुखाने से, उनको भी धूप में सुखा के रखने, फिर पहनने से ही ज्यादा बेहतर रहता है। And maybe Artika, you can also tell them that they can also put Dettol. अगर उनको Dettol का ही मिलता है तो Dettol भी डाल सकते हैं, या फिर कोई भी डिसइंफेक्टेंट अगर उनको कहीं मिले तो डालना चाहिए। और धूप में क्यों सुखाना चाहिए, वो आप उनको वो भी समझा दीजिए कि कैसे उससे कीटाणु मरते हैं। क्योंकि कई लोग अपने कपड़े और अपने अंडरगारमेंट्स को छुपा के रखते हैं, और हम हमेशा उनको यही सिखाते हैं कि क्यों उनको धूप में दिखाना बहुत जरूरी होता है। जो अनुराग जी बोल रहे हैं वो बात कर रहे हैं डेटॉल की। डेटॉल साबुन सबने आजकल सुना होगा कि डेटॉल का हैंड वॉश आता है, उसी तरह से डेटॉल का एक और दवाई के जैसा दवाई के डब्बे में आता है। उससे ये होता है, वो एक पदार्थ होता है जिससे कीटाणु मर जाते हैं। तो एक तो अच्छी बात है कि अगर आप डेटॉल आपके आसपास कहीं मिलता है और आप आसानी से खरीद सकते हैं, तो उससे भी कपड़े धोना अच्छी बात है। पर जैसे कि अनुराग अभी बोल रहे थे, धूप में सुखाने से क्या होता है कि जो धूप की किरणें होती हैं, उनमें पहले से ही वो ऐसी होती हैं कि उनके कांटेक्ट में आने से कीटाणु मरने लगते हैं, या फिर कीटाणु कई हद तक कमजोर हो जाते हैं। तो उनसे इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए जो वो बोल रहे हैं कि अभी भी कई कई जगहों में जो औरतें होती हैं, वो अपने अंडरगारमेंट्स धूप में नहीं सुखाती हैं क्योंकि उन्हें शर्म आती है।
तो इस सोच को बदलना चाहिए और इस सोच के बदलने की जरूरत है, क्योंकि कुछ और नहीं तो धूप में फैलाना कपड़ों को, और इनको तो है ही, और कपड़ों को भी धूप में फैलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि धूप की किरणों में आने से कीटाणु मर जाते हैं। यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि कितने लेयर्स लगने हैं। तो इसमें जैसे कि हमने बताया है, कपड़े के 6 से 7 लेयर्स लगाए हैं हमने, तब जाके ये इतना बना है। मोटा नहीं है बिल्कुल भी, आराम से पहना जा सकता है। पर अगर आपको लगता है कि आपको 6 से 7 से ज्यादा की जरूरत है तो आप 6 से 7 से ज्यादा भी लगा सकते हैं। 6 से कम लगाने में थोड़ी परेशानी होगी क्योंकि कपड़े गंदे होने की परेशानी हो सकती है। तो हम अपनी तरफ से 6 बताते हैं, जिसमें से हमने अभी 3 और 3 कपड़े की लगाई है, और जो 7वीं है वो हमने ये टेबल क्लॉथ के कपड़े की लगाई है। तो 6 से 7 मेरे ख्याल से ठीक रहती हैं, पर किसी को इससे ज्यादा लगे तो ज्यादा भी लगा सकते हैं। एंड अर्तिका, मे बी हम उनको बता सकते हैं कि एटलीस्ट 6 पैड्स बना लें, तो फिर आप धो के आसानी से यूज करते हैं। पहले फिर आगे आप ज्यादा बना सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 6 पैड्स के साथ चालू कर सकते हैं। जी, तो जो मैम बोल रही हैं, जैसे मैंने बताया कि ये एक बार बनाने के बाद दोबारा इस्तेमाल हो सकते हैं। अब आप सोचिए कि आप ये अपनी पुरानी साड़ी से बना रहे हैं या पुरानी सूती बेडशीट से बना रहे हैं, तो आपको एक पैड की कीमत 10 रुपए भी नहीं पड़ेगी। अगर आप कपड़े की कीमत भी लगा लें, और ये जो अगर आप ये ऐसे कपड़े की भी कीमत लगा लें, सुई धागे की भी लगा लें, तो एक पैड आपको 10 रुपए के आसपास का पड़ेगा। तो एक बार में ऐसा ठीक रहेगा कि आप 5 से 6 और हो सके तो 7 पैड्स बना लें, ताकि आप जैसे अगर आपको 5 दिन का भी महीना होए तो आप एक दिन में लगभग 3 पैड यूज करके उन्हें सुखाने रख दें, और जो बाकी 3 हैं उनको अगले दिन इस्तेमाल कर लें। तब तक वो आपके पहले वाले 3 सूख गए होंगे, तो तीसरे दिन पे उन्हें ले लें, और एक इमरजेंसी के लिए। और इसके इसके साथ सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपने इनको बनाने में 10 रुपए भी लगाए तो आपने 7 पैड के 70 रुपए लगा लिए, तो ये आपको ये पैड्स आपके लिए लगभग 1 साल के लिए तो काम आएंगे ही आएंगे। अगर आप इन्हें ढंग से भी ना धोएं तब भी आप 1 साल तो आराम से निकाल लेंगे इनके साथ। अगर आप इन्हें बहुत ढंग से धोएं और आप हर बारी नींबू लगाएं, हर बारी डेटॉल लगाएं, तो ये 1 साल से ज्यादा भी चल जाएंगे। तो मतलब आपकी एक बार के महीने पे जितना आप पैड्स पे जितना भी खर्चा करते थे वो बहुत कम होके 70 रुपए हो जाएगा। और ये आपके शरीर के लिए भी अच्छा है, मार्केट वाले पैड से भी अच्छा है आपके शरीर के लिए, और आपके आसपास के जगह के लिए भी बहुत अच्छा है कि अब आप ये फेंक नहीं रहे होंगे, आप कोई भी टाइप के पैड फेंक नहीं रहे होंगे, और आपको काम करने में भी परेशानी नहीं होगी। तो आप में से जो लोग जैसे बाहर काम करने जाते हैं, या जो इस वजह से काम नहीं करने जा पा रहे थे क्योंकि पता नहीं होता है कि महीने के समय पे कब क्या हो जाए, कपड़े गंदे हो जाए, तो उनके लिए भी ये काफी अच्छा रहेगा। और अगर आपको हमारी बात पे अभी भी विश्वास नहीं है तो मैं बस ये कहूंगी कि आप एक बार बस हमारे कहने पे 1 महीने के लिए इसे इस्तेमाल करके देखें, और आप खुद अपने आप फिर ये निर्णय लें कि ये आपके लिए अच्छे हैं कि नहीं है, और आपको कैसा लगा इन्हें इस्तेमाल करके। और आप में से काफी औरतें बहुत ही होशियार और माहिर है सिलाई के काम में, तो पहले आप अपने लिए बनाइए और जैसे दीदी ने बताया आप इस्तेमाल कीजिए, और आपको अपने आप महसूस होगा कि इसका क्या फायदा है, मैं कितनी आसानी से घूम सकती हूँ, फिर सकती हूँ, अपना काम कर सकती हूँ। और उसके आगे अगर आप चाहते हैं, जैसे हमारी एनजीओ में ने काफी लोग औरतों को सिखाया है ये काम, तो ये औरतें बना के पहले अपने लिए उन्होंने बनाया, फिर दूसरी औरतों के लिए बना के उन्होंने ये बेचा भी है। तो अभी ये लॉकडाउन के समय में भी ये काम चालू है काफी काफी औरतों के साथ। तो आप सब तो बहुत ही होशियार है, माहिर है सिलाई के काम में, तो प्लीज आप अपने लिए भी बनाइए और आपके परिवार में दूसरे लोगों के लिए बनाइए, और आपके आजू बाजू आप लोगों को बेच भी सकते हैं, क्योंकि 60 रुपए के 6 पैड काफी लोग खरीद पाएंगे। हाँ, और जैसे कि जैसे जो लोग यहाँ पे सिलाई का काम कर रहे हैं या जिनके पास सिलाई की मशीन है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, शहर में इस तरह के पैड, इस तरह का एक पैड 200 से 300 रुपए का बिकता है। तो ये लोगों को इतना महंगा बेचे, ये है पास आपको ये करना आता है तो ये बहुत अच्छी बात है, और आप इससे एक्चुअली आप भी कमा सकते हैं।
जी और दीदी ने बताया वो सही है, सॉरी मैंने आपको कॉस्ट हाँ, बताया, हाँ, कॉस्ट जैसे दीदी ने समझाया 10 रुपए है, लेकिन अगर आप बेचेंगे तो आप उसमें कुछ पैसा कमा सकते हैं। जी, और मतलब उससे आप पैसे भी कमाएंगे और आप किसी का भला भी कर देंगे, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। अर्टिका, कुड यू ऑल्सो स्पेसिफाई, कुछ लोगों ने फेसबुक लाइव में भी ये सवाल पूछा है, कौन से कपड़ों का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, कौन से कपड़ों का इस्तेमाल करने से रैशेस या ऐसा कुछ हो सकता है? So this is for this is for the people who asked this question on Facebook Live. Like I said in the beginning, only cotton and flannel is okay to use. Everything else is not okay to use. So this is if you could just go back and remember any of the sanitary pads commercials that you may have seen on TV. They're always advertising and they're always taking pride in having a cotton layer on top. So that's literally the concept. Cotton, like for example, we also, when we speak to women about health and hygiene, we also tell them that cotton underwears are your best friend and cotton underwears are the only underwears you should be wearing. That is also what a doctor will tell you if you ask them about this. So keeping that in mind, cotton and flannel, so cotton and cotton based cloth is the only cloth that should be used for making cloth pads. No other cloth should be used. Almost all other cloth types will give you rashes. So yes, cotton and cotton based cloth flannel is okay to use. This, what I was showing earlier, that I said can be found in broken umbrellas, old raincoats, old tablecloth. This is a fabric called PUL, which is literally cloth which is laminated on either side, which is what makes it waterproof. The lamination on either sides makes it waterproof. This is good to use, but this can never be the top surface of your pad. So either this comes in between layers inside the pad, or it can be the back of your pad if you want like extra support. But the top layer, preferably the top layer and preferably the back layer should be just cotton. So for example, my pad, I can't fold it perfectly because on the inside there's a layer of PUL, which will not let me fold it perfectly, roll it perfectly. So yeah, does that answer it, Rashmika? Yes, thank you so much. Is there anything else that we could take from Facebook? No, that was that was very beautiful and very explicit and so easy actually, you know. एंड रश्मिका जी, आपने भी कितने सारे कम्युनिटी वर्कर्स मैं देख रही हूँ और काफी मेन को देख रही हूँ, आदमी देख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है। जैसे हमारे अध्यक्ष भी अनुराग है, तो आई एम सीइंग लॉट ऑफ मेन ऑन द स्क्रीन एज वेल। तो थैंक यू, आपने इतने सारे कम्युनिटी वर्कर्स को इकट्ठा किया है रश्मिका जी। And Tarini, I mean, Artika, sorry, that was beautiful, very, very explicitly explained. And, you know, I'd also like to invite our viewers that, you know, a lot of you are great with your stitching skills. And, you know, in the pandemic, we are all at home, we have a lot of time. So maybe you can make also a lot of pads and, you know, contribute, donate it to people around you. Because I think it's quite fairly simple even for us to do it at home. And Rashmika ji, aap sab, can you maybe, you know, I think, I don't know how the connection is with the community workers, ask them how they felt, or maybe they can just give a thumbs up to Artika. I would also want to say कि अगर किसी को भी, मैं अभी एक अनम्यूट कर देती हूँ 2-3 मिनट के लिए, अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप इस वक्त पूछ सकते हैं, जस्ट इन केस, बिकॉज बहुत सारे लोग म्यूट हो रखे हैं, तो मैं अनम्यूट कर देती हूँ। किसी भी तरह का सवाल हो तो आप डायरेक्टली, या आपको कुछ कहना हो तो, सबको मैंने अनम्यूट कर दिया है। तो अगर आपको कोई भी सवाल हो आप इस वक्त पूछ सकते हैं, या अगर आप कुछ बताना चाहे वो भी कर सकते हैं। आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है अर्तिका जी को? ये आप सबके खाने पकाने का टाइम है, लेकिन आपने बहुत ही टाइम हमारे साथ स्पेंड किया, उसके लिए शुक्रिया। हेलो मैम। हेलो मैम, आपसे एक क्वेश्चन है। हाँ जी पूछिए। बोल रहे थे एक नैपकिन हम कितने दिन तक यूज कर सकते हैं? कितने दिन नहीं, इस तरह का जो एक नैपकिन है वो आप 3 घंटे से 4 घंटे से 5 घंटे यूज कर सकते हैं, कितने दिन नहीं।
तो फिर वो यूज करने के बाद फिर दिया जाएगा। तो वो यूज यूज करने के बाद जैसे हमने बताया, आप इसे 5 घंटे के बाद आप इसे गर्म पानी में सोख दें। इसे गर्म पानी किसी भी बाल्टी में या किसी भी मग में लेकर उसमें डुबा दें और इसी तरह का दूसरा इस्तेमाल करने लगे। इसीलिए जैसे मैडम बोल रही थी कि एक महीने में एक माहवारी के लिए आपको 6 से 7 ऐसे बना लेने चाहिए। जी, मतलब एक नैपकिन एक बार ही यूज किया जाएगा, मतलब एक महीने में एक ही बार यूज किया जाएगा। इसको एक बार इस्तेमाल करने के बाद आप इसे धो सकते हैं। धो के फिर यूज कर सकते हैं? जी जी। तो इसे गर्म पानी से और साबुन से धो के और अच्छे से धूप में सुखाने के बाद इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने जैसे इसे आज यूज करा और आपने इसे आज पानी में डुबो दिया और आपने इसे ढंग से धो लिया और सूखने के लिए लगा दिया, कल आपने अलग इस्तेमाल करे और परसों ये आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्षा जी जी, मैम। वर्षा जी, आपके साथ कोई है? आपका वीडियो चालू कर सकते हो आप? वीडियो जी, वीडियो चालू कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। कीजिए कीजिए, शर्माइए नहीं। तो हमको भी अरे बहुत नमस्ते, चालू रखे। अच्छा वर्षा, नमस्ते। नमस्ते। अच्छा सुनिए, अगर आपको महीने वाली चालू है तो आपने जी पहला पैड लगाया, तो जब भी वो पूरे खून से भर गया है तो फिर आपको जी ये पैड को बदलना है। तो अंदाज से एक दिन में सबका खून बहना अलग अलग होता है, लेकिन एक दिन में आपको 3 से 4 पैड यूज करने हैं, क्योंकि अगर पैड में खून भर गया है और आप अपना काम करते जाओ तो फिर गर्भ में इन्फेक्शन का चांस होता है। तो पैड खून से जी भर गया ना, तो वो धोने के लिए डाल दो गर्म पानी में, थोड़ा सा डेटॉल डाल के, और नया पैड डाल दो। जी तो अगर आप 6-7 पैड बना लोगे ना, तो फिर आपका महीने वाली कितने दिन चलती है? 4-5 दिन चलती है ना, तो फिर जी वो आप बदल सकते हो अच्छी तरह से। लेकिन खून से भर गया ना पैड, तो बदलना है। ऊपर सफेद कपड़ा है ना, तो आपको दिखेगा कि अभी है मुझे, और थोड़ा भारी भी लगेगा तो उसको बदल देना है। जी मैम, ये जानकारी करना था कि वो इसके लंबाई कितने होते हैं और चौड़ाई इसके कितने होते हैं, माप तो आखिर होंगे ना? तो लंबाई है ना, दीदी ने बताया 8 इंच बनाओ। 8 इंच बनाओ तो क्या है, कुछ काम करने के टाइम कपड़ा वपड़े पे खून नहीं लगेगा। 8 इंच बनाओ। जी और चौड़ाई है ना, आप क्या करो, मार्केट से एक छोटा पैकेट ले लो। वो चौड़ाई अंदाज से 3.5 इंच बना सकते हो। व्हाट डू यू से आर्तिका? तो जैसे जो इसकी लंबाई है 9 इंच है, पर 8 इंच काफी होता है। और जो इसकी यहाँ तक चौड़ाई है ये 4 इंच है, और ऊपर थोड़ा और बड़ा है, ऊपर 4 से 4.5 इंच है। इतना ऐसा मार्केट में मिलता है, मार्केट में ऐसा होता है। पर अगर आपको लगे कि आपको इससे लंबे की जरूरत है तो आप इससे लंबा बना लीजिए, उससे कोई आपको परेशानी नहीं होगी। और वर्षा जी अभी हुक लगाए, जैसे हमने ये एक हुक लगाया है क्योंकि हमारा 8 इंच का है। अगर आप 8 इंच से लंबा बनाए तो आप इस तरह के 2 हुक लगा लें, तो वो एक जगह जी रहेगा। और वर्षा जी, जैसे सबका अलग अलग अंदाजा है ना किसको क्या पसंद है, लेकिन अगर आप लंबा बनाओगे ना, तो अगर आपको भी सो गए तो कोई टेंशन नहीं है कि कपड़े में खून बह जाएगा। तो मैं तो लंबा वाला ही यूज करती हूँ। जी मैम, और बोलना था कि वो ऊपर में जो कपड़े दिए जा रहे हैं वो मतलब कि पूरा ही पतला या फिर मोटा कॉटन कपड़ा भी दे सकते हैं ऊपर का परत जो है? जी जी। तो मैंने जैसे जो यहाँ पे मैंने बनाया है उसमें जो अंदर का कपड़ा है वो ये कपड़ा है, टी शर्ट का फाड़ा हुआ है, ये उसी टी शर्ट का बचा हुआ है जो मैंने यूज कर ली है। जी तो ये पतला कॉटन है, जैसे आपको दिख रहा है, जैसे टी शर्ट होती है उसका। और जी जो मैंने ऊपर के लिए 2 कॉटन लगाए हैं वो मोटा कॉटन है, कुर्ते का कॉटन है। जी अभी मैम, मेरे पास दोनों चीजें थी, मैंने इसलिए अलग अलग इस्तेमाल कर ली हैं। पर अगर आपके पास सिर्फ यही है तो इससे भी काम चल जाएगा, सिर्फ यही है तो इससे भी काम चल जाएगा। मैम जैसे कि हम सिर्फ नीचे में अगर हम प्लास्टिक सेट कर दे, प्लास्टिक सेट करके सी दे तो उससे लीक होने का चांस नहीं है? अगर कपड़ा सिर्फ कहीं बाहर गए, कोई सफर में या मार्केट गए, आने में लेट हो गया तो खराब हो जाएगा कपड़ा। जी, तो मैंने इसलिए ये प्लास्टिक की शीट दिखाई थी ऐसे करके। जी तो जी इस प्लास्टिक की शीट को ना कपड़े की परतों के बीच में लगाना है। तो ये बीच में प्लास्टिक की शीट लगी है, ऊपर नीचे कपड़ा लगा है। आपको ज्यादा और परेशानी हो रही है तो आप पीछे भी एक प्लास्टिक लगा दें, पर आगे प्लास्टिक नहीं लगानी है क्योंकि आगे नहीं आपके जी जानते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। समझ में आया वर्षा जी?
जी जी, थैंक अब यू। आप क्या कीजिए कि आप 3-4 फ्रेंड्स को मिलके साथ में कीजिए, तो आपको भी मजा भी आएगा थोड़ा, और फिर क्या है, आप दूसरे को भी सिखा सकते हो साथ साथ में। जी, ऐसे तो मैं एसएचजी चला रही हूँ, वो जीविका के तौर पे। मेरे अच्छा। अभी है वही 14 एसएचजी है, अच्छा। जिसमें कि हम दीदी के पास शेयर भी किए थे कि ऐसे ऐसे मतलब घरेलू ये नैपकिन बनाए जा रहे हैं, अगर आप लोग यूज करना चाहते हैं तो हम बता देंगे। तो बोले थे कि हाँ क्यों नहीं यूज करेंगे, अगर हम लोग जानेंगे बनाने के लिए। तो हमने ठीक है, पहले तो हमको सीखने दीजिए, उसके बाद फिर आपको हम बताएंगे। तो तो हमको इसके भी बाद हम हमको रिहाब भी सेंटर से कांटेक्ट किए थे, जो कि वो आरिफ सर है, वो मुझको बताए थे, वो हमको बताया कि ठीक है मीटिंग होगा तो आपको हम वीडियो कर देंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप बना के फिर हमको भी फोटो भेजिएगा, दीदी को। जी जी जरूर, जी जरूर सब लोग बना के। जी। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते मैम। किसी और को कोई सवाल है, किसी को भी पूछना है? शहनाज जी, या जो ग्रुप्स में बैठे हुए थे, मुख्तर जी, आपके यहाँ पे जो ग्रुप में बहुत सारी लेडीज लोग बैठी है, किसी को भी कोई भी सवाल पूछना हो? आप शर्माइए नहीं, कैमरा खोल दीजिए तो हम भी आपको देख सकते हैं। शहनाज जी, वीडियो आपका वीडियो चालू कर दीजिए। और ये मुख्तर जी के ग्रुप में भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। हाँ, अगर किसी को भी वहां भी कोई भी सवाल पूछना हो। दिए जी, अगर आपको कोई सवाल पूछना हो, मैं अभी सबको अनम्यूट कर चुकी हूँ। मुक्ता जी, आपको कुछ पूछना है? गुड्डी जी, आपको कोई सवाल पूछना है? आप भी अपना स्क्रीन ऑन कर सकते हैं। सर तो बोल रहे कमेंट करना है। सर कमेंट करना है बोले थे। नो, मुझसे कुछ समरीन फातिमा जी, जी आपको कुछ बोलना है? समरीन जी बोले। पैड के अंदर मटेरियल क्या है मैम? पैड के अंदर जैसे मैंने बोला कि 6 लेयर लगा रखी हैं, तो इनमें से जो 3 और 3 तो कपड़े की ही हैं, एक लेयर लगा रखी है इस कपड़े की, जो कि आपने देखा होगा कि जो टेबल पे कवर करने के लिए कपड़ा बनता है, या छाते का जो कपड़ा होता है, रेनकोट का जो कपड़ा होता है, एक लेयर उसकी अंदर इसकी लगा रखी है। ये थोड़ा प्लास्टिक जैसा होता है, इसमें पानी नहीं सोखता, ये गीला नहीं होता है, इसलिए इससे छाता रेनकोट बनता है। तो हमने बाकी लेयर तो कपड़े की ही लगा रखी है, कॉटन की, सूती कपड़े की, और इसमें बीच में एक इसकी लगा रखी है। और जैसा मैं बता रही थी कि अगर ये ना मिल पाए आपको आसानी से, अगर आपके पास ना हो कोई भी पुराना छाता या ऐसा ना मिल पाए, तो सिर्फ कपड़े से भी बन सकता है। इसको लगाने से बस ये होता है कि थोड़ी इसकी सोखने की शक्ति थोड़ी और बढ़ जाती है। यही क्वेश्चन था ना आपका? समरीन जी, समझ में आया? समरीन जी, आई थिंक उनका Connection नेटवर्क problem, है। yeah. It's okay, she'll come back to you. हाँ, the screen is frozen there. हाँ, तो किसी को कोई और सवाल नहीं? रश्मिका जी, और किसी को आपको लग रहा है? अभी तो नहीं लग रहा है, अच्छा, बट लेकिन आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ ये 1 घंटा गुजारा, और ये पैड बनाने के लिए आपने इतना वक्त अपने हमारे साथ बिताया है। तो प्लीज आप जरूर अपने लिए पैड्स बनाइएगा, अपने बहनों के लिए पैड्स बनाइएगा, और आगे जाके आप ये पैड्स बना के बेच भी सकते हैं। And Artika, thank you for explaining this so beautifully, even to the viewers. एंड रश्मिका जी, आपको बहुत धन्यवाद। यानी आप कितने 100 से ज्यादा कम्युनिटी वर्कर्स मैं आज स्क्रीन पे देख रही हूँ, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने सचमुच ये शेयरिंग जो बोलते हैं ना,
बहुत सुंदर तरीके से किया है। और लॉकडाउन के टाइम पे अगर ये औरतें अपने आप पैड्स बनाने लगेंगी तो हमारे लिए भी बहुत ही खुशी की बात है। And for the viewers, I encourage you also to share this basic skill. You know, Artika has explained it so well. You know, to people around you. You know, it could be workers around you. You know, communities around you, which we can make a difference to. And you know, I think many of you might already know, but the invention of sanitary napkins was the largest invention to empower women. So it's wonderful that we are part of this journey of women's sanitation and hygiene and wash. And yes, I'd also like to add today Artika and Rashmi ने कहा कि अनुराग जी का जन्मदिन है ये हफ्ते में, जो हमारे अध्यक्ष हैं। So Anurag, very very happy birthday from the Humans for Humanity family to you, and lots of love and good wishes from all of us. और आप for all our viewers, हमारे सब viewers के लिए हमारा बहुत ही बड़ा नमस्कार. Thank you. Thank you so much. I would all. Anurag, people are wishing you on the chat. Rashmika, may I just add something? Yes, sure. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी जिन लोगों ने हमें आज आके ये देखा, थैंक यू सो मच कि आप सब 1 घंटे के लिए हमारे साथ ये टाइम आपने बिताया। और मैं आशा करती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ये अब घर जाके ट्राई करेंगे। और आप सब रश्मिका मैम को जानते हैं तो आप उनको बना के प्लीज अपने फोटोज भेजिएगा अपने पैज, ताकि वो मुझे भी दिखा पाए। और secondly, thank you so much Jalpa ma'am for conducting this so nicely. Thank you so much. And I would like to just add something for anybody who's viewing this on Facebook, that I've personally worked with Humans for Humanity, and it's been such a great experience in terms of what they do, in terms of the kind of community outreach they have, and just in terms of if you're somebody who's never worked in this field and you know is exploring, so it's such a great place to he's very welcoming, and he'll teach you from scratch, and you know, he'll take you under his wing, and he'll like really walk you through it. So anybody who's looking to get into any sort of development work, any sort of community work, Humans for Humanity is a great place to be at. A little bit about what Tarini Foundation does. We have a project called Project Mahina, and we work exclusively in the area of menstrual hygiene management. So we work with sustainable menstruation, which is basically cloth pads, and we work with other problems like disorders, reproductive health, and a little bit of sexual wellness. So if anybody is specifically interested in that area, you can please reach out to us. You can find us on Instagram by the name Team Tarini. And yeah, that's about it. It was so great being here. Thank you so much. And you know, it's amazing during this pandemic and lockdown, you know, the earth, the Mother Earth, Pachamama is reclaiming her power, you know, you know, and when we are also looking at this, making eco-friendly, you know, pads, we are contributing to the environment of the earth and, you know, to the entire ecosystem. So I think that is also very beautiful and relevant in these times. Yeah, you know, something we always mention to people we talk to and we work with, which really like leaves them shocked. It's actually, you can find it on Google. It's a fact you can find on Google, but people don't know about it, that an ordinary store-bought sanitary napkin takes about 800 years to decompose. And we use about 40 every cycle of ours. So while I understand it's a very difficult switch to make, because like sanitary a sort of invention, you know, they empowered women to a very large extent. But what we advise to people and what we also follow as a group is that on days that we have to be working, we use store-bought napkins or other products. On the days we stay home, we try and stick to cloth pads. So, you know, we're making our contribution, if not fully the change, we're moving towards it. That's wonderful. That's wonderful. रश्मिका जी, आप अपने वर्कर्स को भी हमारे तरफ से आप भी धन्यवाद बोल दीजिएगा अभी. Thank you so much. I would also like to say that बहुत टाइम से हम लोग चाहते थे कि ये एक ऐसा सेशन हो, स्पेशली हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो मेंबर्स है, जो टीचर्स है रिहैब की, जो बच्चों के साथ काम करती है, जो फैमिलीज के साथ काम करती है, जो हमारी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स है, जो फील्ड में काम करती है, जो अभी
फिलहाल सारी वुमेन्स को भी, वुमेन लीडर्स को भी मोटिवेट करिए कि वो भी इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप करे, अपनी फैमिलीज में अपना वॉइस ले, वो अपने घर से बाहर काम करे। तो इन सारे औरतों ने बहुत टाइम से दे रियली बीन वांटिंग टू डू दिस। लास्ट टाइम अनुराग जी ने हमारे लिए मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे एक सेशन लिया था, तो तब भी सब लोग बहुत ही एंथुजियास्टिक थे, और दिस इज द फर्स्ट ऑफ अ काइंड कि हम ऐसा कुछ वीडियो के थ्रू ऐसे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उन लोगों के साथ ऐसा कुछ सेशन कर रहे हैं। So I would really like to say thank you so much for giving your time and for doing this for our for all the women in our villages. This really meant like a lot for them. This means a lot for them. So yeah, thank you so much. It's truly our pleasure. It's a gift and it's our privilege. So thank you for giving us the opportunity, and thank you for this beautiful sharing. And you know, I think we're all working with the same passion and vision towards a common purpose. So yeah, we wish you lots of success in all the work that you're doing. Thank you And we so would much. love to do this in the future again. Anurag and I were already talking about it, and we would absolutely love to do it for a different set of people, wherever you like, whenever you like. Thank you. Thank you Definitely. so much. Thank you so much. Yeah. Thank Yeah. Have a good evening. Bye. You too. Namaste. Bye-bye. Bye-bye to all the viewers. Namaste.